class we have done few questions of exercise 11.4. So today we will be doing few more questions. We have completed till question number 4. Now we will start from question number 5. Okay. Same way word problems are given. First of all we will draw the picture for that. Then we can start with the solution. In question number 5 it is a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden. Okay. Here it is mentioned that it is a square garden and the path is built inside. Okay, these two things are given to us that and this path is only 1 meter wide. Okay, अगर हम इसको देखेंगे अच्छे से, so this is only 1 meter wide. So this path is 1 meter wide, which is built along and inside a square garden of side 30 meter. This is 30 meter. ये ध्यान रखिएगा कि पाथ हमने इनसाइड बनाया है, तो इनसाइड वाले स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा. बोथ द मार्जिन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट. ओके, फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. ओके, सो सेम वे वी विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आउटसाइड स्क्वायर. outside square, side is equal to 30 meter, area is equal to side into side. Writing formula every time is very important. Then 30 meter into 30 meter, it will be equal to 900 meter square. Then inside square, side is equal to 30 minus 1 plus 1. That will be 30 minus 2 means 28 meter. Okay. Then we can find out the area of inside square. Area is equal to side into side. Means 28 into 28 meter. Both are in meter. So when I will multiply it, it will be 784 meter square. Therefore, area, first part we are finding right now. Two parts it is having. Area of path. Outside square. Area of outside square. Minus area of inside square. Means 900 minus 784. Which will be equal to 116 meter square. So this is the answer for first part. Second part is find the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden. Now see, this was the whole square shaped land. यहाँ पे path बन गया and this area is for garden. Okay, means inside square area is for gardening. So we have to find the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. So for second part, inside square area multiplied by 40, which means 784 multiplied by 40, that will be rupees 31360, 31,360. Okay. Why we have multiplied by inside square area, यही समझने वाली चीज है, क्योंकि देखिए गार्डनिंग जो होगी अब तो बचे हुए पोर्शन में होगी, that is only inside garden. So that inside square area multiplied by 40. स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हैं like the plantation of the grass will be done in inside square. Therefore, the total cost of planting grass in the remaining portion is equal to this. Okay, पहले एक आध लाइन आप लिख के then you can continue. Now we will look at question number 6. Question number 5 तक आपका जो पैटर्न था, like one rectangular plot is there or square plot is there. Either the path will be built outside or the path will be built inside. If it is outside, then we will add the margin 2 times in the length and breadth. And if the path is built inside, then we can subtract the 2 margins from the given length and breadth. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया है. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो आपके पाथ में बनता है, we will look at that also. 2 crossroads, like
वेन एवर यू आर गोइंग आउट समवेयर, तो एक जैसे हम बोलते हैं ना चौराहा, चौराहा जैसे आता है जहां पे चार रास्ते, चौराहा मीन्स चार रास्ते. सो सेम वे टू क्रॉस रोड्स, दिस इज वन रोड एंड दिस इज अनदर रोड. ये रोड समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है. दिस इज कॉल्ड चौराहा. ओके, दिस इज द चौराहा वेयर फोर वेज आर गोइंग. सो टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर. ये जो रोड है हमारी कितने मीटर की है? दोनों रोड 10-10 मीटर की है. ओके, सो टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ इट 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स. ठीक है, 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं ये बहुत अच्छे से. देन कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर. ये जो क्रॉस रोड है ये सेंटर में बन रहा है. किसके सेंटर में बन रहा है? एक रेक्टेंगुलर पार्क के सेंटर में बन रहा है. और ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ है 700 मीटर और इसकी ब्रेथ है हमारी 300 मीटर. ठीक है, इसके बीच में ये हमारा दो क्रॉस रोड निकला. ये हमारी पार्क है, दिस इज माई पार्क. ठीक है, इस पार्क के बीच में ये दो क्रॉस रोड है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स. अगर आप देखेंगे ये वाली जो रोड है इन दो साइड्स के पैरेलल है, ये वाली जो रोड है वो इन दो साइड्स के पैरेलल है. तो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूं. टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its side. So this much picture I have drawn. Now find the area of the road. अब मुझे इस रोड का एरिया निकालना है, रोड का एरिया. ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड. दो टाइप के एरिया निकालने हैं. पहला रोड का एरिया, दूसरा पार्क का एरिया जिसमें रोड शामिल ना हो. वैसे तो ये पूरा पार्क है, इस पार्क के बीच में रोड भी है, तो एक्सक्लूड करना है हमें रोड को. गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स. चलिए हेक्टेयर्स में तो हम बाद में दे देंगे आंसर इजीली 10,000 से डिवाइड करके. पहले हमें सिंपल एरिया निकालना सीखना है. ठीक है, अगर जैसे मैं आपको बोलूं सबसे पहला काम तो रोड का एरिया निकालने का है. ठीक है, तो रोड का एरिया बहुत इजीली समझ में आ रहा है. भाई ये भी एक रेक्टेंगुलर रोड है, इस रेक्टेंगुलर रोड की ब्रेथ हम लोग 10 ले सकते हैं. दिस इज 10, देन द ब्रेथ विल बी 10 एंड दिस लेंथ ऑफ रोड इज 300 मीटर. ये 300 है तो ये भी 300 हो जाएगा. ओके, पिक्चर को समझ लेते हैं हम लोग. तो ये जो वर्टिकल रोड गई है, वर्टिकल रोड की लेंथ हो जाएगी 300 और ब्रेथ हो जाएगी 10. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड जिसकी ब्रेथ 10 हो जाएगी और लेंथ कितनी हो जाएगी 700. दिस इज 700 700 700. ओके, तो ब्रेथ इसकी लेंथ हो जाएगी 700 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10. ठीक है, मैंने वर्टिकल रोड का भी एरिया निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रोड का भी एरिया निकाल लिया. दोनों को प्लस भी कर देंगे तो मेरा क्रॉस रोड का एरिया आ जाएगा. इज इट करेक्ट? अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे देखो ये मैंने वर्टिकल रोड का एरिया निकाला और ये हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया निकाला, तो ये जो एरिया है बीच वाला ये 2 बार आ रहा है, जबकि हमें कितना बार आना चाहिए? एक ही बार आना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, वर्टिकल रोड का एरिया प्लस हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया दोनों को प्लस कर दिया और ये 2 बार आ गया है तो एक बार हम माइनस कर सकते हैं. माइनस दिस सेंटर एरिया एंड फॉर दिस सेंटर दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10. ओके, तो आप देखिए हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वर्टिकल रोड is equal to length into breadth. Length we will take 300, breadth we will take 10, so that is 3000 meter square. Okay, similarly area of horizontal road, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, you can change the statement also. Again length into breadth. For horizontal length will be 700 into 10, that is 7000 meter square. Okay, so area of crossroads, area of crossroads अगर हम निकालेंगे, so 3000 plus 7000 minus 10 into 10. एक बार हमें ये वाला माइनस करना होगा, so that will be 10
1000 minus 100, so 9900 meter square will be your area of crossroads. ठीक है, ये अपना मीटर स्क्वायर में हो गया. इसको अगर हेक्टेयर में करना हो, so simply we can divide this by 10,000, which is equal to 0.99 hectares. Okay, so this is the area of crossroad. अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन. तो अगर मैं इस पूरे पार्क का एरिया निकालूं लेंथ इनटू ब्रेथ, we will do it further. We'll see that how we can find out the area of the remaining garden. This is one part which we have done, like finding the area of crossroads first in meter square, and then we have converted in hectares. Then we will see how we can find for the remaining park. So for area of remaining park excluding roads, excluding मतलब आपको माइनस करना है. Okay, excluding roads is equal to area of rectangular park minus area of crossroads. ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस क्रॉसरोड्स का. अभी हम सब कुछ लेंगे in meter square only. So length into breadth will be 700 into 300 minus 9900. 2100 meter square minus 9900 meter square. Sorry, this will be 2100. पूरे 4 जीरो इसमें लग जाएंगे. तो इतने मीटर स्क्वायर में से 9900 मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा. अब इसमें मोस्टली माइनस करने में बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जीरोस वाले माइनस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सबको. देखिए, जीरो में से जीरो गया, देन 0 0. नाउ दिस 9 कांट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0. यहां से भी कैरी नहीं हो सकता. ये 0 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा. देन नाउ दिस 10 कैन गिव कैरी टू दिस. तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा. सो 10 minus 9 1, 9 minus 9 0, 0 minus 0. So it will be 200,100 meter square. For hectares, we will divide it by 10,000. 40 means decimal after 4 digits. 1, 2, 3, 4. That will be 20.01 hectares. Okay. So in this way we have done question number 6 also. इसके बाद के भी जो क्वेश्चंस है आपके, उसमें मैं ऐसे ही क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना है. क्रॉस रोड का एरिया निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल रोड प्लस वर्टिकल रोड एंड माइनस द कॉमन एरिया. जितनी बार भी हम क्रॉस रोड का एरिया निकालेंगे सेम टेक्निक होगी. हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल माइनस दिस कॉमन एरिया. और उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट पूछा है दैट वी कैन आंसर. सो देन रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.